Okay, welcome back. So we had done with flip-flops, है ना? And what is the chapter's name? Flip-flop, register and counter. तो flip-flop part खत्म हो चुका है. And whatever is necessary, only that much you need to do. And I have told क्या deleted है वो मैंने last period में, last video में मैंने बताया है flip-flop में से क्या क्या deleted है. फालतू में जो deleted है वो मत पढ़ना, ठीक है? जितना है उतना ही करना. And so we are going to the next part, that is registers. Fine. अभी फ्लिप फ्लॉप का क्या मतलब होता है? फ्लिप फ्लॉप मतलब क्या था? एक बिट स्टोर करने की जगह, 1 बिट स्टोरेज, है ना? बहुत सारे बिट्स हैं, एक बिट को स्टोर करने के लिए हमको क्या चाहिए? फ्लिप फ्लॉप. तो फ्लिप फ्लॉप ऐसे एक मेमोरी है जहां पे एक बिट स्टोर होता है, ठीक है? अब बहुत सारे बिट्स है, तो व्हाट शैल वी यूज फॉर स्टोरिंग? Then we used registers. I gave you the example of our normal books also, right? If you want to write just one page, you will tear any page and write. ठीक है? आज मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लास किया, कुछ नोट्स एक पेपर पे आपने लिखा, कल भी पेपर पे लिखा, परसों भी पेपर पे लिखा, पेपर करके बहुत सारे हो जाते हैं. You can bring all that together and you can make it a book, है ना? तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन है तो आपको बुक लगेगा. एक दो लाइन का इंफॉर्मेशन है तो you will need only one paper. सेम थिंग, 1 बिट मेमोरी के लिए आपको फ्लिप फ्लॉप लगेगा. बहुत सारी मेमोरी है तो यू विल हैव टू जॉइन दीज फ्लिप फ्लॉप्स एंड यू विल मेक अ रजिस्टर. समझ में आया? रजिस्टर. तो ये रजिस्टर कहाँ पे यूज होता है? रजिस्टर्स यूज होते हैं स्टोरेज के लिए, है ना? इंफॉर्मेशन तो कंप्यूटर में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, हर चीज में. डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में डेटा अगर मैं बोलूं या फिर इंफॉर्मेशन अगर मैं बोलूं तो क्या होता है? 0 या 1. इसके अलावा मैं अगर नाम भी लिखूं ना, मेरा श्रुति ऐसा नाम लिखूंगी, मैं अगर टाइप करूंगी यहाँ पे और सेव करूंगी, वो उसको श्रुति नहीं समझता. इट विल कन्वर्ट एवरी अल्फाबेट इनटू इट्स कोड, राइट? उसको वो कोड में कन्वर्ट करके सेव करेगा, राइट? तो उसको सिर्फ zeros and ones समझता है. तो ऑल दिस हैपेंस इन शिफ्ट रजिस्टर्स, आई मीन रजिस्टर्स. If I want to shift data, if I want to move data, then shift registers are used. मतलब register itself is a combination of flip flops, right? Combination of flip flops है. If I want to shift data, ये flip flops है जो connected है अपने आप से. If I want to shift data somewhere, then I can shift using these registers. Based on the direction of shifting, there are two types of shift registers: shift left, shift right. But the good news is shift registers आपके syllabus में से deleted है, ठीक है? So I will tell you the page number. सिर्फ registers का basic introduction ही है और उसका application ही है, आपको shift registers नहीं है. तो I told you for this chapter, Fadke publication is very good than Kinnari. I found that. And obviously it is up to you, whichever publication you want to use, you can use. That's not an issue at all. I felt Fadke publication is better for this chapter. Okay, page number 253 of Fadke publication. Page number 253. Please let me know by yes or no if you have opened. नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप खोल के रखे हो या नहीं? I will also tell in this page number 5.18 in Kinnari publication. If you're using page number 5.18, Fadke publication, if you are using, it is page number 253. Page number 253. Okay, yes or no? Can I move forward? Page number 5.18 mein, question number 22. Explain the working of serial in, parallel out, type of shift register. Cancel that. Shift register nahi hai aapke isme. Okay, if you're using Fadke publication, page number 253, shift register सबसे नीचे है, सबसे नीचे का पैराग्राफ shift register कैंसिल कर दीजिए. That's not there, deleted portion है. मैम क्वेश्चन नंबर 21 भी नहीं है. राइट द नोट ऑन शिफ्ट रजिस्टर. हाँ, not there. शिफ्ट रजिस्टर पूरा नहीं है, you can delete that. ठीक है? बट वो जो क्वेश्चन 21 कैंसिल किया ना तुमने, उसका जो पहला पैराग्राफ है शिफ्ट रजिस्टर का डेफिनेशन, वो आना चाहिए, ठीक है?
टाइप्स ऑफ शिफ्ट रजिस्टर को कैंसिल कर दो, बट एक बार रीड कर लो शिफ्ट रजिस्टर का डेफिनेशन जो है, जो पहला पैराग्राफ दिया बस वो एक बार रीड कर लो, खुद के वर्ड्स में लिखा तो भी चलेगा, टू बी ऑन द सेफर साइड. ओके, जस्ट रीड इट, सॉरी जस्ट रीड एंड कीप. ठीक है. पेज नंबर 5.19, दोनों क्वेश्चन नंबर 23, 24 करने की जरूरत नहीं है. पेज नंबर 5.21, क्वेश्चन नंबर 25, वो भी करने की जरूरत नहीं है. ओके. एंड इफ यू यूजिंग फड़के पब्लिकेशन, पेज नंबर 253 शिफ्ट रजिस्टर्स, और उसका अगला पेज, पेज नंबर 254, वो भी पेज कैंसिल है. ठीक है, समझ में आया क्या है शिफ्ट रजिस्टर? रजिस्टर समझ में आया ना? ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, एक फ्लिप फ्लॉप में एक बिट स्टोर होता है. ए ऑब्वियसली मैं मुझे एक बिट से ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर करना पड़ेगा. व्हाट विल आई यूज? ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स. मुझे थोड़ा इंफॉर्मेशन लिखना था, मैंने एक पेज लिया, लेकिन बहुत सारा लिखना है तो मैं बहुत सारे पेजेस जोड़ूंगी ना, कॉमन सेंस. तो वो रजिस्टर बन गया. ठीक है, more than 1 or 2 data if you want to store, you will use a register. Okay, now the flip-flop in a register, the flip-flops are wired, they are connected. ठीक है, so from one end it will enter and from one end it will go out. Okay, and depending on that there are four types of, depending on input and output, there are four types of registers. Serial in मतलब एक एक डेटा एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक एंट्री मारेगा. That is serial input, serial output, मतलब आउटपुट भी एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक निकलेगा. Serial in, parallel out, मतलब एक के पीछे एक के पीछे एक आएगा. Serial in, पैरेलली बाहर जाएगा, एक के पीछे एक के पीछे एक नहीं जाएगा, एक साथ सब बाहर जाएगा. समझ में आया? उल्टा, पैरेलल इन सीरियल आउट, दैट मींस एक के पीछे एक नहीं जाएगा, एक साथ सब डेटा जाएगा और सीरियली बाहर निकलेगा. सीरियल आउट, एक के पीछे एक बाहर निकलेगा. एंड पीपो, दैट इज पैरेलल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट, दैट मींस PIPO, दैट इज एक साथ डेटा अंदर आएगा, एक साथ डेटा बाहर जाएगा. डिपेंडिंग ऑन दैट, these are the types of registers. Okay, now let us quickly go to the next part, that is counters. Okay, counters क्या, मैंने ये स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर ही बताया था. क्या क्या करता है काउंटर? ऑब्वियसली द नेम इटसेल्फ सेज काउंटर्स, मतलब क्या करेगा? कुछ तो काउंट करने वाला है ना. आपने काउंटर्स बहुत जगह देखा होगा. आप अगर कोई गेम खेल रहे हो दोस्तों के साथ, तो कितने मिनट में किसने पहला खत्म किया, ये करने के लिए आप स्टॉप या टाइमर यूज करते हो, काउंटर्स यूज करते हो. या फिर कितने बार एक गेम में जीती हूँ उसके हिसाब से काउंटर्स यूज किए जाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना. नाउ देयर आर इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, काउंटर्स आर यूज्ड टू काउंट द क्लॉक पल्स. ठीक है, क्लॉक पल्स के हिसाब से काउंटिंग करने के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं, दैट इज नोन एज अ काउंटर. नाउ देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ काउंटर्स. Okay, there can be, just give me a minute, my pen is stuck. Okay, there can be two types of counters, up counter and down counter. ठीक है, up counter and down counter. तो up counter मतलब क्या? जीरो से ऊपर काउंट करना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 so on. कहाँ यूज होगा ये? कुछ पता है कहाँ यूज हो सकता है ये? ईवीएम्स में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, राइट. एक पार्टी को मैंने वोट किया, फर्स्ट वोट, वही पार्टी को दूसरे ने भी वोट किया, सेकंड वोट, वही पार्टी को तीसरे ने वोट किया, थर्ड वोट, वही पार्टी को चौथे ने वोट किया, फोर्थ वोट, 5 6 7, ऐसे काउंटिंग होते जाएगा. 0 से स्टार्ट होता है, हाँ या ना? ये है अप काउंटिंग. दिस इज नोन एज अप काउंटिंग. डाउन काउंटिंग क्या होगा? कॉमन सेंस है. डाउन काउंटिंग क्या होगा? कोई एक नंबर से नीचे 0 तक आना, दैट इज नोन एज डाउन काउंटिंग. तो ये वोटिंग के लिए यूज कर सकते हैं. डाउन काउंटिंग कहाँ यूज कर सकते हैं?
रॉकेट लॉन्च देखा है अपने? रॉकेट लॉन्च होते हुए देखते हो? जब रॉकेट लॉन्च होता है तो दे स्टार्ट द काउंटडाउन 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। जब 0 होता है तब रॉकेट लॉन्च होता है। सच केसेस वहां कौन सा काउंटर यूज होता है? डाउन काउंटर यूज होता है। स्क्रीन पे लिखा रहता है 10 9 8 7 एक्सेट्रा। आप कोई गेम भी खेलते हो आजकल, तो गेम में भी वैसे ही रहता है ना? मैंने रिसेंटली मैं कोई गेम खेल रही थी, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, तो उसमें भी ऐसा था, यू स्टार्ट द गेम, वो काउंटर देता है 5 4 3 2 1 0 गो। समझ में आ रहा है? तो डाउन काउंटर तो कितने बार कितनी चीजों में आपने देखा होगा। मैं रॉकेट का जस्ट ऐसे ही एग्जांपल दे रही हूँ। सो डाउन काउंटर कैन बी यूज्ड फॉर रॉकेट लॉन्चिंग। Yeah, once when you have to launch a rocket, they start they start the countdown. जब न्यू ईयर होता है 31st के रात को काउंटडाउन होता है ना, जब 12 बजते हैं तब, तो all that is down counters. Okay, now this is the two types of counting you can do, up counter and down counter. Now depending on what did I say, counter is used for counting clock pulses, है ना? Counting of clock pulses होता है। तो depending on that, depending on the clock, giving the importance of the clock, there are three types of counters. Okay, number one, asynchronous counters, इसी को बोलते हैं सीरियल काउंटर, इसी को बोलते हैं रिपल काउंटर। ठीक है, नाम याद रखना। असिंक्रोनस उसी को बोलते हैं सीरियल, उसी को बोलते हैं रिपल। क्या है मैं बताती हूँ। सेकंड इज नोन एज सिंक्रोनस, इसी को बोलते हैं पैरेलल। ओके, these are the two types of counters. Now in a counter, काउंटर मतलब काउंटिंग है, it is used for counting, it is a device. ऑब्वियसली उसमें फ्लिप फ्लॉप्स होंगे। ठीक है, एक बिट में होगा क्या काम काउंटर का? एक बिट में होगा? नहीं, डेफिनेटली नहीं। आई हैव टू काउंट मल्टीपल नंबर्स, तो मुझे एक बिट से ज्यादा चाहिए। मैंने क्या बोला? एक बिट स्टोर करने के लिए फ्लिप फ्लॉप्स होता है। एक बिट में मेरा काउंटर का काम नहीं होगा, तो मुझे ज्यादा फ्लिप फ्लॉप्स लगेंगे। इट इज अ बंच ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, इट इज अ कनेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। और फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक लगता है, क्लॉक नहीं है तो नहीं चलेगा। आई हैव टोल्ड यू दिस बिफोर ऑल्सो। फ्लिप फ्लॉप को लगता है क्लॉक। Now, if every flip flop, for example, काउंटर कितने बिट का है ये बताता है कि उसमें कितने फ्लिप फ्लॉप्स है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम यूजिंग अ 3-bit काउंटर। 3-bit काउंटर में कितने फ्लिप फ्लॉप्स होंगे? इनपुट है इधर से आउटपुट है। कितने फ्लिप फ्लॉप्स होंगे 3-bit काउंटर को? काउंटर का जो भी बिट है वो बिट इंडिकेट करता है नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। समझ में आया? 3-bit काउंटर में कितने फ्लिप फ्लॉप्स होंगे? 3 फ्लिप फ्लॉप्स, 1 2 3। 4-bit काउंटर में कितने फ्लिप फ्लॉप्स होंगे? 4 फ्लिप फ्लॉप्स। इधर एक और ऐड किया जाएगा। समझ में आया कितने बिट का है? अगर क्वेश्चन में सीधा सीधा बोलता है डिजाइन 4-bit काउंटर, ये हिंट आपको आ जाना चाहिए। 4-bit काउंटर मतलब 4 फ्लिप फ्लॉप्स यूज करेंगे। हर फ्लिप फ्लॉप को हर फ्लिप फ्लॉप को, भले ये काउंटर में है, रजिस्टर में है, कहीं पे भी है, फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक पल्स लगता है। अगर हर फ्लिप फ्लॉप को सिंक्रोनाइज्ड सेम वे का अगर क्लॉक पल्स दिया है, सिंक्रोनाइज चारों एक साथ चल रहे हैं, then it is known as a synchronized counter. If they are getting a common clock or they are synchronized using some method, then it is a synchronized counter. अगर सभी फ्लिप फ्लॉप जो काउंटर में है, सभी फ्लिप फ्लॉप को अलग अलग क्लॉक दिया है, that means it is a synchronous counter. समझ में आया? Asynchronous and synchronous, did you understand? Yes, just give me a minute. Okay, did you understand synchronous and asynchronous? If it has different clocks, iska alag, then it is asynchronous. If it is all synchronized and some method, in some way, all the flip-flops are going together, then it is a synchronous clock. Did you understand? Now there is a third category which is not in your syllabus, but there is a third category, combination. That means it is a combination of both. That is a combination counter.
समझ में आया टाइप्स ऑफ काउंटर्स? अभी मैंने ये बताया कि काउंटर में कितने, कौन से काउंटर में कितने फ्लिप फ्लॉप्स आएंगे वो कैसा पता चलता है? कैसा पता चलता है कितने फ्लिप फ्लॉप्स हैं एक काउंटर में? कैसा पता चलता है? उसके बिट में, है ना, वो कितने बिट का है वो फाइंड आउट करना, वो कितने बिट का है वो लिखा ही रहता है। 2 बिट काउंटर है तो कितने का फ्लिप फ्लॉप्स रहेंगे? बोलो फास्ट। If it is a 2 bit flip flop, how many 2 bit counter, how many flip flops will be there? 2. Correct, 2. ठीक है. If there are 3 bit, it's a 3 bit counter, how many flip flops will be there? 3. If it's a 4 bit counter, how many flip flops will be there? 4. ठीक है. Now ये bits तो मुझे समझ में आ गया. ठीक है. That means if it is a 3 bit counter, I will have 3 flip flops connected to each other. Right? Connected to each other. How many states will it have? How many stages it's going to count? कितने states होंगे? उसको बोलते हैं modulus. क्या बोलते हैं उसको? What is it called? Modulus. कितने states वो count करेगा? कितने बार वो काउंट करेगा? कहां तक वो काउंट करेगा? इसको क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज मॉड्यूलस और इसका शॉर्ट फॉर्म है मॉड. ओके, अंडरस्टूड? नाउ ये कैसे फाइंड करेंगे? इसका फॉर्मूला है 2 raised to n, where n is the number of flip flops. ठीक है. अभी बताओ 3 बिट काउंटर है, कितने फ्लिप फ्लॉप्स हैं? 3, है ना? दैट मींस कितने स्टेट्स होंगे? हाउ मेनी स्टेट, हाउ मच टाइम्स इट इज गोइंग टू काउंट? कितने बार, कितने स्टेट्स होंगे उसके? कितने मॉड्यूलस होगा? 2 raised to n. 2 raised to 3 is how much? 8. That means this counter will count till 8. समझ में आया मॉड्यूलस का मतलब? क्लियर है? So similarly, if in the question, do not get confused. अगर लिखते हैं डिजाइन अ मॉड 8 काउंटर, मॉड 8 मतलब मॉड्यूलस 8, मतलब उसके कितने स्टेट्स होंगे? 8 स्टेट्स. 8 फ्लिप फ्लॉप होंगे क्या? नहीं, 8 स्टेट्स होंगे. ये मक्स डीमक्स में भी ऐसा एक फॉर्मूला था, याद है क्या? मक्स डीमक्स में भी ऐसा एक फॉर्मूला है. तो ये 8 है. तो अगर मॉड 8 डिजाइन करने बोला, कितने बिट का काउंटर है नहीं बोला, तो 2 raised to n is equal to 8. n कितना होगा? n will be 3. तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कितना होगा? 3. समझ में आया? सो इट कैन बी आस्क्ड बोथ वे, दोनों तरीके से पूछ सकते हैं. डिजाइन अ 3 बिट काउंटर. 3 बिट काउंटर बोल दिया तो फिर कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है. 3 बिट है तो 3 फ्लिप फ्लॉप्स आपको समझ में आ जाएगा. लेकिन कभी कभी जनरली इट इज आस्क्ड डिजाइन मॉड 8 काउंटर, तो आप 8 फ्लिप फ्लॉप नहीं बनाना. मॉड 8 है वो, मॉड्यूलस 8 है, मतलब 8 is the number of states it is going to count. It is the number of times it is going to count. What is the formula to find out number of flip flops? 2 raised to n is equal to the mod. So you can easily get what is n. समझ में आया? Now tell me design mod 16 counter. कितने flip flops लगेंगे? 16, mod 16 counter. तो क्या होगा? करेक्ट, n is equal to 4. तो क्या होगा? यहाँ पे एक और फ्लिप फ्लॉप अटैच करोगे. समझ में आया मॉड्यूलस का कंसेप्ट? सबसे पहले समझ में आया? नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग, ये कहीं तो नोट डाउन करके रख देना. प्लीज नोट डाउन दिस इन योर ओन लैंग्वेज समवेयर. ओके, सो दिस बिकम्स easy for you to understand. So first what we are going to do for today is we are going to design, and पहला क्या था, क्या टाइप, पहला टाइप कौन सा था काउंटर का? असिंक्रोनस, है ना? असिंक्रोनस, रिपल और सीरियल, तीनों नाम हो सकते हैं, असिंक्रोनस, सीरियल और रिपल. I'll tell you what it means. Okay, we will first draw the diagram. First, okay, now we are going to do asynchronous 3 bit counter. ठीक है, asynchronous क्यों? क्योंकि तीनों फ्लिप फ्लॉप को अलग अलग क्लॉक है. ठीक है. सीरियल क्यों? क्योंकि एक के पीछे एक कनेक्टेड है, इसीलिए. ठीक है. नाउ जो मैं बोलूंगी अब ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना. इट्स वेरी इजी. कैन यू सी माई स्क्रीन? Yes, ma'am. ओके, नाउ सी, आई विल टेक माई पेन ऑल्सो. पेन भी रेडी रखती हूँ. ठीक है.
I will take which color? मोटा वाला ब्लू लूं क्या? I take red. ठीक है. Now pay attention. ये है 3 JK flip flops. Okay. I hope you know the type of flip flops. You SR देखा, JK देखा, D देखा, T देखा, है ना? 4 types of flip flops देखे. JK flip flop है ये. This is one type of flip flop. Okay. The first flip flop is A, then is B, then is C. अब ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं क्लॉक, है ना? देखो तीनों को सेम क्लॉक है क्या? तीनों को सेम क्लॉक है क्या? हाँ या ना फटाफट बोलो. नहीं, तीनों को सेम नहीं है. क्यों नहीं है? इसको सेम ए वाला जो ये जो फ्लिप फ्लॉप है इसको सीधा सीधा हमने क्लॉक दे दिया. इसका जेके फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट, ये जेके फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट इसका क्लॉक बना है. समझ में आया? इसका सेकेंड फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट थर्ड का क्लॉक बना है. मतलब इसका आउटपुट इसको इनपुट हुआ है, इसका आउटपुट इसको इनपुट हुआ है. समझ में आया? सबका अलग अलग है. ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सीरियल. मतलब भूमिका के पीछे मैंने श्रुतिका को लगाया, उस श्रुतिका ने भूमिका का हाथ पकड़ा है, मैंने भूमिका का हाथ पकड़ा है, तो मतलब कि अपन सीरियल ही है. श्रुतिका डायरेक्टली मुझसे कनेक्टेड है क्या? नहीं, मुझसे कनेक्टेड डायरेक्टली नहीं है. लेकिन यहीं पे सिग्नल नहीं दिया मैंने, यहीं पे सिग्नल नहीं दिया तो आगे का चलेगा क्या? आगे का नहीं चलेगा. समझ में आया? दैट इज सीरियल आल्सो. इसका दूसरा नाम है सीरियल. समझ में आया? क्लियर है? कनेक्शन समझ में आया? और अभी ये आउटपुट निकाला है इसमें से, तो ये फाइनल फ्लिप फ्लॉप कौन सा है? ये फाइनल है. सही बात है. तो आउटपुट हम लिखेंगे पहले सी, क्योंकि पहले वो बाहर आएगा. सही बोला मैंने? उसके बाद लिखेंगे हम बी, उसके बाद आएगा ए. ठीक है, तो ट्रुथ टेबल ऐसे ही लिखेंगे हम. समझ में आया सबको? क्लियर है? ट्रुथ टेबल में इसीलिए सी पहले आएगा, इसीलिए उसको बोलते हैं MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट. मतलब वो सबसे पहले आएगा, क्योंकि आउटपुट सबसे पहले, आउटपुट इस पे से आ रहा है, वैसे याद रखना. ठीक है, सी पहले आएगा, फिर बी पहले आएगा, फिर ए पहले आएगा. इसलिए ये है LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट. समझ में आया क्या? यस और नो? हाँ. तो अभी हम ट्रुथ टेबल ना, ट्रुथ टेबल के लिए मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पे लिखती हूँ. ठीक है, सी पहले आएगा, उसके बाद बी पहले आएगा, फिर ए पहले आएगा, उसके बाद आएगा. ठीक है, क्लियर है ना? अभी देखते हैं इसका. ये सभी फ्लिप फ्लॉप्स, तीनों फ्लिप फ्लॉप्स, दे आर गोइंग टू चेंज देयर स्टेट. ध्यान से सुनो, उनका स्टेट 0 से 1 या 1 से 0 चेंज होगा एट फॉलिंग एज. 2 टाइप्स का ट्रिगरिंग बताया था मैंने एज ट्रिगरिंग में, राइजिंग एज या फिर फॉलिंग एज. जो नीचे आता है 1 से 0 वो फॉल हो रहा है, इसलिए उसको बोलता है फॉलिंग एज. समझ में आया? क्लियर है? मैं इसको इरेज कर देती हूँ. समझा क्या? यस मैम. अरे यार वापस वो कैसे लाते हैं? ओके, समझा? इतना समझा? क्लियर है? अब हर एवरी फ्लिप फ्लॉप इज गोइंग टू चेंज इट्स स्टेट एट अ फॉलिंग एज. ये फॉलिंग एज समझ में आ रहा है क्या? दिस इज फॉलिंग एज. ये जो है ना, इसको फॉलिंग एज बोलते हैं. ठीक है, एक ये है राइजिंग एज, ये है राइजिंग एज, ये है फॉलिंग एज, क्योंकि वो ऊपर से नीचे गिर रहा है इसलिए वो है फॉलिंग एज. हर फॉलिंग एज पे आपको एक चेंज ऑफ स्टेट दिखाई देगा. ठीक है, चलो पहला क्लॉक कहाँ जा रहा है? मेरे पेन पे ध्यान देना. पहला क्लॉक कहाँ जा रहा है? ए पे जा रहा है. तो सबसे पहले कौन जागृत होगा? ए जागृत होगा. तो इसीलिए मैं क्लॉक सिग्नल स्क्वायर वेव है वो मानते हो, स्क्वायर वेव में ड्रॉ करती हूँ. उसके बाद उसको ना आप भी जब पेपर में ड्रॉ करोगे, यू ड्रॉ दिस क्लॉक पल्स एंड देन यू ड्रॉ अ डॉटेड लाइन डाउन. उसको एक्सटेंड करना नीचे. ठीक है, लाइंस बनाना.
तो हम इजीली बाकी के लोग उसको फॉलो करके ए बी सी बाकी के जो फ्लिप फ्लॉप है उसको फॉलो कर लेंगे वो लाइंस को, ठीक है। नाउ ये देखो अब क्या हुआ है, क्लॉक यहां से स्टार्ट होता है और यहां पे एंड होता है, ठीक है। दिस इज वन साइकिल। समझ में आया, एक साइकिल कौन सा है, 0 1 एंड कमिंग डाउन, दैट इज वन साइकिल। तो पहले मैंने क्या बोला, जैसे ही फॉलिंग एज मिलेगा चेंज स्टेट, ए जागृत होगा। तो ये है पहला फॉलिंग स्टेट, फॉलिंग एज, ए जागृत हो गया, 0 से वो हो गया 1, ठीक है। वो एक साइकिल तक, अगले फॉलिंग एज तक वो 1 ही रहेगा। समझ में आया। अगला फॉलिंग एज कहां पे है, अगला नीचे जाने वाला एज कहां पे है, यहाँ पे है। मानते हो, प्लीज से यस और नो सो दैट आई कैन गो फास्ट। तो अगला फॉलिंग एज यहाँ पे, वहां तक वो 1 ही रहेगा। जैसे ही उसको ट्रिगर होता है, अरे फॉलिंग एज आ गया, चेंज स्टेट, इट विल गो फ्रॉम 1 to 0। कब तक 0 रहेगा वो, अगला फॉलिंग एज तक। अगला फॉलिंग एज कहां पे है, यहाँ पे है। अरे अगला फॉलिंग एज आ गया, चेंज स्टेट, अगला फ्रॉम 0 to 1। कब तक 1 रहेगा वो, अगले फॉलिंग एज तक। समझ में आया, ए कैसे 0 1 0 1 0 1 रहेगा, समझ में आया। यस अभी ए जागृत हुआ है, जब जब ए जागृत होगा उसका आउटपुट कहां किसको कनेक्टेड है, बी को। बी विल ऑल्सो गेट जागृत ओनली एट एज फॉलिंग एज। अब ए का एक साइकिल यहां से शुरू होता है, यहां पे एंड होता है, ठीक है। अब ए को फॉलो करता है बी, ए का जहां जहां फॉलिंग एज है वहां वहां बी विल चेंज स्टेट। ओके सो ये 0 था 0 था 0 था 0 था, अरे ए का फॉलिंग एज मिल गया, चलो चेंज स्टेट, जागृत हो जाओ। कब तक 1 रहेगा, जब तक ए का नेक्स्ट फॉलिंग एज नहीं मिलता। ए का नेक्स्ट फॉलिंग एज कहां पे, यहाँ पे, तब तक वो 1 ही रहेगा। नेक्स्ट फॉलिंग एज मिला, चेंज स्टेट 1 to 0। कब तक 0 रहेगा, अगले फॉलिंग स्टेट तक। अगला फॉलिंग स्टेट कहां पे, यहाँ पे, देन अगेन चेंज स्टेट। समझ में आया, क्लियर है। नाउ फॉर सी ऑल्सो, सी एक्चुअली ना यहाँ पे ना वो कट गया है, एक्चुअली ये 0 है, ठीक है। सी किससे जागृत होगा बताओ मुझे फटाफट, सी किससे जागृत होगा, बी से। बी का आउटपुट, ओके तो अभी ए हो गया, बी हो गया, ठीक है। सी कब जागृत होगा, सी तब जागृत होगा, ये बीच में आ गया, इसको अपन साइड में करते। बी जब जागृत होगा उसका आउटपुट जा रहा है सी को, है ना। जब जब बी जागृत होगा तब सी जागृत होगा, उसका आउटपुट सी तक पहुंचेगा तब, ठीक है। सो कहां जागृत होगा, सब जेके फ्लिप फ्लॉप्स दे आर गोइंग टू गेट ट्रिगर्ड एट द फॉलिंग एज ऑफ क्लॉक, ठीक है। तो इसका क्लॉक कौन है, इसका क्लॉक है बी। तो बी का जो फॉलिंग एज है, ये देखो ये है फॉलिंग एज, वहां पे सी जागृत होगा, तब तक वो 0 ही था, 0 0 0 0 0 0 0। अरे फॉलिंग एज आ गया, क्लॉक नीचे आ गया, चलो स्टार्ट, चेंज स्टेट फ्रॉम 0 to 1। समझ में आया, कब तक 1 रहेगा, जब तक बी का अगला फॉलिंग एज नहीं मिलता। समझ में आ गया, एक पैटर्न देखा क्या आपने, आपको यहाँ पे एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, दिस इज 0 1 0 1 0 1 0 1, ये 0 है ना, नीचे मतलब 0, ऊपर मतलब 1, 0 1 0 1 0 1 0 1। इधर देखो क्या फॉर्म हो रहा है, 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1। यहाँ देखो क्या हो रहा है, 0 0 0 0 1 1 1 1। तो ये अब एक्चुअली ऑटोमेटिकली ऐसा पैटर्न फॉर्म हो गया है। समझ में आ रहा है, ये 1 0 था, ये 2 0 था, उसका डबल 4 0 था, अब यहाँ पे है 8 zeros, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 zeros and 8 ones। समझ में आया कैसे ये चालू होता है, फॉलिंग एज, क्लॉक के फॉलिंग एज पे। पहला वाला क्लॉक था ये, उसके फॉलिंग एज पे ए जागृत हो गया, जहां जहां फॉलिंग एज है वहां वहां उसने अपना स्टेट चेंज कर दिया, 0 था तो 1 हो गया, 1 था तो 0 हो गया। बी को किसका क्लॉक जा रहा है, ए का क्लॉक जा रहा है बी को, है ना। तो ए के फॉलिंग एज पे बी जागृत हुआ, फॉलिंग एज पे बी जागृत हुआ, जहां पे 0 था वो 1 हो गया, 1 से 0 हो गया। सी कब जागृत होगा, जब बी का फॉलिंग एज मिलेगा, बी का जैसे ही फॉलिंग एज मिलता है उसने भी अपना स्टेट चेंज कर दिया। समझ में आया, अब ट्रुथ टेबल ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। ट्रुथ टेबल के लिए अगर क्लॉक दिया ही नहीं, मैंने क्लॉक दिया ही नहीं, प्लीज मेरे बोर्ड पे देखिए,
क्लॉक दिया ही नहीं तो कुछ चालू होगा क्या? चालू होगा कुछ? नहीं, कुछ भी चालू नहीं होगा। मेरा बोर्ड दिख रहा है ना? यस मैम। नेक्स्ट, अभी मैंने फर्स्ट क्लॉक पल्स में कौन जागृत होगा? देखो देखो आपने इसमें, मैं दूसरे कलर से लेती हूँ, मैं लेती हूँ ब्लू। फर्स्ट क्लॉक पल्स में कौन वन हुआ? फर्स्ट क्लॉक पल्स में सिर्फ ए जागृत है ना, बाकी सब जीरो, राइट? सिर्फ ए जागृत हुआ। नेक्स्ट, सेकेंड क्लॉक पल्स में ए जीरो है। आपको ये जो है ना, ये एक पल्स है। This is one pulse till here. Okay, second pulse is from here to here, इधर। ठीक है, तो इसमें मैं आपको शॉर्टकट बताती हूँ बाद में, पहले ये करने दो, उसके बाद में बताती हूँ शॉर्टकट। ठीक है, ए कैसे जा रहा है? ए जा रहा है 0 1 0 1 0 1 0 1 इन दिस फॉर्मेट, है ना? लुक एट दिस, ये है वन साइकिल, एक साइकिल है ना ये, दिस इज वन साइकिल ऑफ द क्लॉक। ये पूरा एक साइकिल है, एक साइकिल के लिए 0 है, 0 1 0 1 0 1 0 1 पूरे साइकिल के लिए। ठीक है, तो आई कैन डायरेक्टली राइट दैट 0 1 0 1 0 1 0 1। कहां तक लिखेंगे ये? कैसे पता चलेगा कहां तक लिखेंगे? कहां तक लिखेंगे? जितने स्टेट्स हैं इसको, कितने स्टेट्स है इसको, कितने फ्लिप फ्लॉप्स है? 3। कितने स्टेट्स होंगे? 2 raised to 3. How many states will be there? 8 states. Then it is a mod 8 counter. तो इसका दूसरा नाम क्या है? It is a mod 8 counter. समझ में आया? So how many states should be there? Starting from 0 1 2 3 4 5 6 and 7. मैं 8 लिखूंगी क्या? नहीं, मैंने 0 से स्टार्ट किया है, इसीलिए। समझ में आया? काउंट करो स्टेट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आया? 8 स्टेट्स। यू विल गो ऑन राइटिंग दिस। ओके, बी देखो, मैंने जैसे पहले बताया, बी देखो, बी इसका डबल है, 2 साइकिल के लिए वो 0 है, सो यू विल राइट 2 times 0 2 times 1 2 times 0 2 times 1। ओके, सी इसका डबल है, वो देखो मैंने वेवफॉर्म में लिखा है ऑलरेडी, डबल है, 2 का इधर कितना हो जाएगा? इट विल बी 4 4 times 0 4 times 1। दिस इज द ट्रुथ टेबल। और जो भी मैंने अभी बोला वो सब आपको लिखना है कि आउटपुट ऑफ द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप is given to the second flip flop, second output of the second flip flop is given to the third flip flop, and then from there we get the MSB. C gives the MSB, A gives the LSB. On every falling edge of the clock, the flip flop changes its state. समझा क्या? क्लियर है? असिंक्रोनस अप काउंटर, ये अप काउंटर है कि डाउन काउंटर है? काउंटिंग ऊपर से ही हो रहा है ना, 0 1 2 3। बाइनरी नंबर्स रीड करो, 0 1 2 3 4 5 6 7। This is an up counter. So this is 3-bit asynchronous up counter. समझ में आया? क्लियर है? Yes. अब इसी को मुझे 4-bit करना होगा तो क्या करूंगी मैं? 4-bit बनाना है तो what if I want to make this a 4-bit? I'll just change my this thing. What if I want to make it as 4-bit? No problem. I will connect the C output to one more flip flop. मैं यहाँ पे एक और flip flop लगाऊंगी J, उसको बता दूंगी, मैं बोल दूंगी मैं D, है ना? D बोलूंगी मैं, उसके आउटपुट यहाँ पे क्लॉक पे कनेक्ट करूंगी और यहाँ पे निकालूंगी मैं D। समझ में आया? क्लियर है? D हो जाएगा। और D कब तक जागृत नहीं होगा? जब तक उसको C का फॉलिंग एज नहीं मिलता है। C का फॉलिंग एज यहाँ पे है ना, तब तक वो 0 होगा, यहाँ पे वो 1 हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि C जब जागृत होगा, C का फॉलिंग एज जब मिलेगा तब ये चालू होगा। क्लियर है? और ट्रुथ टेबल में एक और यहाँ पे एक और आएगा MSB में, एंड देन यू कैन गो ऑन टिल कितने स्टेट्स होंगे? 2 raised to 4, क्योंकि 4 फ्लिप फ्लॉप्स है, एंड स्टेट्स विल बी 16, so 0 to 15 आप लिखोगे।
समझ में आया? अब डायरेक्टली बाइनरी 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 15 तक लिखा तो भी चलेगा. अब काउंटिंग है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. डायरेक्टली लिख सकते हो आप. वेवफॉर्म भी नहीं देखने की जरूरत है. मैंने जो बोला वो मेथड भी करने की जरूरत नहीं है. अब डायरेक्टली बाइनरी भी लिख सकते हो. 1 2 3 4 5 6 बाइनरी नंबर्स तो पता है ना, पूरा लिख सकते हो. Yes, ma'am. समझ में आया? क्लियर है? बस अब कल हम इसी का सिंक्रोनस देखेंगे. ठीक है? We will see synchronous counter tomorrow. Otherwise, this video will become very long. Clear is synchronous be same and just a little bit change in the circuit diagram. Clear? Tomorrow we'll finish the chapter. Any doubts? Please feel free to ask. Any doubts, anytime, please feel free to ask. Okay? Thank you.